Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering your experiment number 12 for your electric circuit analysis 1 lab, and its title is Analysis of Series RLC Circuit. Previously you have gone through series RL and RC circuits and their behavior in the presence of an AC supply. Now in this case you will again observe the behavior of both the components, inductor and the capacitor, connected in series together, and their behavior in the presence of an AC supply. So let's see that how does it work out. Now the first thing that comes into our mind is that there must be some kind of phase difference involved between the current and the voltage waveforms when we are trying to analyze the AC circuit involving the presence of both the active components, inductor and the capacitor. Since we already know that when we have a pure resistive component in any series circuit, and we try to apply an AC supply, in that case the current and the voltage waveform are 100% in phase with each other. But however, if we have a pure inductive component involved in a series circuit, in that case the voltage waveform leads the current by 90 degrees, right? Leads the current by 90 degrees. Similarly, if we have a pure capacitive circuit, in that case the voltage waveform lags the current by 90 degrees. Now these are the established facts that we have already gone through in the previous experiments. So I will simply focus on the things that you are trying to learn in this lab. In this case we can see that if we have a phase difference involved, then this phase is dependent upon two things. The first thing is the input frequency, and the other is the value of the inductive or the capacitive components that we are utilizing in our experiment. I have presented here a tabular form of the overall impedance of all the basic components, the resistor, capacitor and an inductor. And we can see that in terms of a resistive component, the overall impedance is equivalent to the value of the resistor. In terms of inductor, it is equivalent to omega L. Omega L is equal to 2 pi FL. It is dependent upon the frequency. Omega is dependent upon the frequency component. And the capacitor is equivalent to minus 1 by omega C, which is actually representing the lag between the voltage and the current waveforms, right? And the apparatus that we will be requiring are a resistor, capacitor and inductor, of course, and we will be requiring an AC supply here. So let's see that what we are trying to observe here. And the series RLC circuits are classified as the second order circuit because they contain both the active components, an inductor and a capacitor, right? And most of these things I've already discussed before, that in terms of a pure resistor, VR is in phase with the current, and in terms of a pure inductor, VL leads the current by 90 degrees, and in terms of a capacitor, VC lags the current by 90 degrees. Now based upon all of this information, we can say that if we have both R, L and C, if we have all three of these components together in a circuit, then we can observe that VL and VC must be 180 degrees out of phase with each other. How they will be opposite to each other, we will see in this graph. This is the circuit that you will be implementing in this experiment, and these are the graphs that theoretically we will be noticing. In the first graph we can see that we have the current waveform showed in green color, and in the next graph we can see that in blue color we have presented the voltage waveform across the component R, right? And we can see that both I and R are 100% in phase with each other. There is absolutely no phase difference between I and VR. Now in case of VL, we can see that at least a quarter waveform is started
before the current waveform, right? This means that the current, that VL is at least the whole waveform is actually representing 180 degrees phase shift. So this means that a quarter waveform is representing 90 degrees, right? So in this case we can see that VL is 90 degrees leading current, right? And in case of VC, there is a 90 degrees lag, which means that it is actually starting at least 1/4 wave with a phase shift between the current, input current, and the voltage waveform VC. So one important thing is that VL और VC, हमने previously claim किया था that VL and VC are both 180 degrees out of phase with each other. तो यहाँ पर भी exactly ऐसा ही हो रहा है that VL and VC एक दूसरे के बिल्कुल flipped versions हैं. So this means that इन दोनों के दरमियान 180 degrees का phase shift होगा, और इसको हम practically भी observe करेंगे. And overall जो आपके पास voltage आ रही है, which is the resultant of VR, VL and VC, इसके according 90 डिग्री से थोड़ा सा कम फेज शिफ्ट है, बट देर इज़ सम फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट करंट, जो कि यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है. इनपुट करंट और जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है इसके दरमियान थोड़ा सा फेज शिफ्ट हमें नज़र आएगा. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इन द एनालिसिस ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज़ दिस थिंग, which is the resonant frequency. Resonant frequency is the one at which the current flowing through the RLC circuit will be maximum. Let's try to observe this. Here. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैंने एक वेव फॉर्म शो की हुई है, दिस इज़ शोइंग अ सीरीज RLC सर्किट बिहेवियर, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एट ये आपकी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर IRMS, विच इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज RLC सर्किट, ये इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है. रेजिस्टेंस जो है, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द ओवरऑल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. चाहे ओवरऑल इम्पिडेंस कम हो या ज़्यादा हो, इन बोथ केसेस में IRMS विल बी मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसको हम प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करेंगे. ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग हियर. Let's move on that what you are trying to implement in this experiment. जो मैंने experiment multisim में implement किया है उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं. इसमें we have a series RLC circuit like this, and I have connected it with a function generator here and an AC ammeter here like this. राइट, और वैल्यूज़ मुझे यूज़ करनी है. कंपोनेंट का नाम के बजाय मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ. 1 किलो ओम, 1 मिली हेनरी एंड 1 माइक्रोफैरड. राइट, और यहाँ पर मैंने एक 4 चैनल ओस्कोप लिया है. दिस G will be connected to ground, and we have 4 channels here, A1 2 3, channel A, B, C and D. 4 channels इसलिए लिए हैं because I have to notice the value at 3 different locations. और ये मैं यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ. तो ये मुझे शो करेगा VR, ये मुझे शो करेगा VL, और ये मुझे शो करेगा VC, राइट. और आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हम वैल्यू सेट करेंगे. इनपुट फ्रीक्वेंसी
can be less than resonant frequency, and it can be equal to resonant frequency, and it can be greater than resonant frequency. तो हम तीनों केसेस के अंदर ऑब्जर्व करेंगे दैट हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है और इनकी वेवफॉर्म्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड सेकेंडली ये जो करंट है यहाँ पर ये शो करेगा IRMS. और सिमिलरली मैं एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ वो ये है दैट आई नीड टू ऐड सम मोर DMMs. हर कंपोनेंट के अक्रॉस भी मैं एक DMM लगा रही हूँ विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वोल्ट मीटर, और ये मुझे शो करेगा VRMS. ये सारे के सारे मुझे VRMS वैल्यू शो करेंगे. यहाँ पर तो हम वेव फॉर्म्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट RMS वैल्यूज़ भी हम ऑब्जर्व करेंगे टू पुट इन जो हमारे पास टेबल एंड पर बना हुआ है उसको हम फिल करने के लिए यूज़ करेंगे. राइट. तो अब उसके बाद हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर जो सर्किट बनाया है इसको मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं इसको सिमुलेट कर लेती हूँ. इनपुट पे मैंने इस वक्त फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है 1000 हर्ट्स विच इज़ 1 किलो हर्ट्स, और मेरे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म्स आ रही हैं दिस इज़ समथिंग लाइक दिस. इसको मैं सिमुलेट करती हूँ, थोड़ा सा बेहतर पॉइंट के ऊपर रोकने की इसको कोशिश करते हैं. राइट. तो इसमें मेरे पास 3 कलर्ड वेव फॉर्म्स हैं. ब्लू कलर्ड है, ग्रीन कलर है और रेड कलर्ड है. रेड इज़ शोइंग मी VR जो कि इनपुट पे वेव फॉर्म आ रही है. अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास एट अ टाइम सिर्फ एक चैनल की इसका स्केल चेंज करने की ऑप्शन दे रहा है, तो मैं अभी चैनल A जो है, चैनल A पे मुझे शो कर रहा है रेड कलर्ड वेव फॉर्म. इसको मैंने यहाँ पर भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है. सिमिलरली मैं अगर इसको नॉब को चेंज करके चैनल B पर ले आती हूँ तो इस चैनल B जो है वो मुझे ब्लू कलर में शो कर रहा है. उसका स्केल मैंने अपनी मर्ज़ी से चेंज किया हुआ है, तो मैं इसको स्केल थोड़ा अप डाउन भी कर सकती हूँ. तो मेरे पास वेव फॉर्म कुछ इस तरह की आ गई है. तो इन्हीं वेव फॉर्म को सिमिलरली मैं चैनल C पर लेकर जाती हूँ, तो वो मेरे पास ग्रीन कलर में है जो कि मुझे VC शो कर रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, और इसका भी मैं स्केल चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से. तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने जो भी स्केल इसका सेट किया हुआ है उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है. तो इसको हम ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं दैट हम इसको फेस शिफ्ट मेजर किस तरह से करेंगे. तो फेस शिफ्ट मेजर करने के लिए मेरे पास यहाँ पर स्केल मेंशन्ड है 5. ये एक्चुअली स्केल शो कर रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल शो कर रहा है जो कि मेरा सेकंड्स में मुझे शो कर रहा होगा टाइम डोमेन में. तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 500 microseconds. This is equal to 1 large division. अब ये 1 large division क्या चीज़ है? This 1 box is equal to, जो एक ग्रिड का जो एक लार्ज बॉक्स है इसको मैं एक 1 लार्ज डिवीज़न बोलती हूँ. एंड इसका साइज़ मुझे ये बता रहा है स्केल 500 माइक्रोसेकेंड्स. नाउ लेट्स सी दैट मेरी एक वेव फॉर्म जो है ये कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है. ये बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है. अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व करना चाहूँ, राइट, इसको मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके I try to start it from here, that बिल्कुल ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रही है रेड वाली वेव फॉर्म, और ये स्टार्ट होकर एक बॉक्स में एक पीक कंप्लीट हो रही है और नेगेटिव पीक अपनी सेकंड बॉक्स में. इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 2 बॉक्सेस यूज़ कर रहा है टू कंप्लीट 1 साइकिल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल हुआ? टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 large divisions which is equal to 2 times 500 microseconds. This is equal to 1000 microseconds. तो ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
frequency will be 1 over time period, this is equal to 1000 hertz, जो कि हमने एग्जैक्टली यही सेट की हुई है। तो इसका मतलब कि हमारी रीडिंग अभी तक ठीक आ रही है। अब मुझे चेक करना है फेज़ डिफरेंस क्या है। फेज़ डिफरेंस के लिए मुझे देखना चाहिए कि एक लार्ज डिवीज़न जो है उसके अंदर स्मॉल डिविजन्स कितनी है, बिकॉज हमें नज़र आ रहा है कि रेड वेव फॉर्म और जो ब्लू और ग्रीन वेव फॉर्म्स हैं इनके दरमियान वन लार्ज डिवीज़न का फ़र्क तो नहीं है, उससे थोड़ा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्मॉल डिविजन्स का साइज़ भी पता होना चाहिए। स्मॉल डिविजन्स कितनी है, एक लार्ज बॉक्स में 1 2 3 4 5 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो इसको हम यहाँ ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। 5 small divisions in one large division। ठीक है, तो इसका मतलब वन लार्ज डिवीजन का साइज़ कितना था, 500 माइक्रोसेकेंड्स। तो इसका मतलब कि वन स्मॉल डिवीजन का साइज़ कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 500 microseconds divided by 5, this is 100 microseconds। सो अब हम इस वेवफॉर्म को दोबारा से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग रेड वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड ब्लू वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 स्मॉल डिविजन्स का फ़र्क आ रहा है दोनों में। तो इसका मतलब कि एक स्मॉल फेज़ डिफरेंस जो है, फेज़ difference is equal to, या time difference, this is not equal actually phase difference, this is the time difference which is equal to delta t हम इसको कहते हैं। this is equal to 2 small divisions, right? and one small division का साइज़ था 100 microseconds, so 2 का साइज़ कितना हुआ, 2 into 100 microseconds, this is equal to 200 माइक्रोसेकेंड्स, राइट। तो अब हमारा फेज़ डिफरेंस किसके बराबर है, फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज। तो डेल्टा टी था 200 माइक्रोसेकेंड्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है हमारे पास 1000 माइक्रोसेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है आई थिंक 80 डिग्रीज़ के करीब कहीं आ जाता है। आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट शायद याद नहीं है इसका फिगर, बट आप इसको देख लीजिएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द फेज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट यानी वी, ये था मेरे पास वी आर, और जो ब्लू और ग्रीन है इनका फेज़ सेम ही है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो वी आर और वी एल के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है दिस इज़ इक्वल टू 80 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सिमिलरली वी आर और वी सी के दरमियान फेज़ डिफरेंस भी सेम है 80 डिग्रीज, राइट। तो दिस वाज नॉट द केस हमारे अकॉर्डिंग, और VL और VL और VC के दरमियान कोई ख़ास फेज़ डिफरेंस नहीं है। आप समझ लें कि 5-10 डिग्रीज होगा या इससे भी कम होगा मे बी। तो इसको अब देखने के लिए हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी अभी हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम रखी हुई थी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी 5033 हर्ट्ज़ के बराबर थी। तो अब हम इसको दोबारा से चेंज करते हैं, इसको हम 5000 हर्ट्ज़ कर देते हैं। एंड नाउ वी ट्राई टू रन इट। तो अब हम इसको थोड़ा सा फेज़ मज़ीद चेंज करते हैं। चैनल ए का तो ठीक है, चैनल बी का चेंज करना पड़ेगा। स्केल्स का हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि हमें वेव फॉर्म थोड़े कुछ बेहतर नज़र आए। राइट, एंड चैनल सी का भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड इसका हम
टाइम डिवीज़न में भी स्केल बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ताकि हमें वेव फॉर्म कुछ बेहतर नज़र आए। तो अब हमें वेव फॉर्म्स कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। राइट, थोड़ी सी हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ा लेते हैं। हम एग्जैक्टली जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर हम सेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ताकि हम एक ही दफ़ा एनालाइज इसको कर लें। ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी जो है, या ब्लू वाली वेव फॉर्म जो है, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग मी VL, और ग्रीन वाली जो है दिस इज़ शोइंग मी VC। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल फ्लिप्ड आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 180 डिग्रीज़ का फेस शिफ्ट बता रहा है। ठीक हो गया। इसको मैं अगर यहाँ पर ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करूँ, राइट, तो इस केस में भी कुछ इस तरह से है कि वी हैव द ब्लू वन here and the green one here, and they are both absolutely 180 degrees shifted or phase flipped with each other, phase difference है आपका। और इसको आप इन्हीं फार्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे थीटा का जो फार्मूला दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब कि हमारी एक चीज़ तो बिल्कुल ठीक प्रूव हो रही है। तो दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है? दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि वेव फॉर्म तक तो बात क्लियर हो गई। अब हमने देखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो हमने करंट लिया हुआ है, विच इज़ जो सीरीज़ में हमने करंट शो किया हुआ है, ये है मेरे पास 7.072 मिली एम्पियर्स, राइट। ये है IRMS वैल्यू एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बजाय कोई और फ्रीक्वेंसी रखती हूँ, मैं इसको फ्रीक्वेंसी को कम कर लेती हूँ। एंड नाउ आई ट्राई टू, मेरा इनिशियल जो एनालिसिस था, थियोरेटिकल मेरा कॉन्सेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये था दैट व्हेन आई हैव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब मेरे पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ पर शो किया कि करंट मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब मैंने फ्रीक्वेंसी कम की है, तो अब मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि करंट कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब मेरे पास करंट आ रहा है 6.99 मिली एम्पियर्स AC करंट। सो दिस मीन्स दैट पहले से ये करंट अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम कर दी है। तो अब मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ा कर देखती हूँ, इसको 7000 हर्ट्स करके देखती हूँ। तो अभी भी मेरे पास पहले से कम आनी चाहिए, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मेरे पास करंट मैक्सिमम होता है। उसको प्रूव करने के लिए मैंने अब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दी है। तो अब इस केस में 7.069 मिली एम्पियर्स आ रही है, जो कि अभी भी पहले से थोड़ी सी कम है। बहुत शार्प डिफरेंस नहीं आया, बट थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 8000 कर लेते हैं, तो अब वो ज़्यादा शो करेगा डिफरेंस, आई गेस सो। राइट, अब ये थोड़ा थोड़ा मामूली सा कम हो रहा है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बहुत शार्प डिक्रीज़ नहीं आएगा, बट ओवरऑल आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद, क्योंकि आपने ओवरऑल जो इम्पिडेंस है उसको बहुत लो रखा हुआ है, इस वजह से अगर आप L और कैपेसिटर जो है इनकी वैल्यूज़ बढ़ा देंगे, तो इन दैट केस हम ऊपर वाले ग्राफ की तरफ चले जाएंगे। बट अभी ओवरऑल इम्पिडेंस आपकी लो है, इस वजह से हमारे पास बहुत शार्प डिक्रीज़ नहीं आ रहा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद। बट ओवरऑल फिर भी कुछ फ़र्क ज़रूर है, and you need to observe this and note down in your
टेबल, जो एंड पर हमारे पास टेबल है उसको हमने फिलअप करना है। दीज आर द फार्मूलाज विच यू ऑलरेडी नो, एंड ये चीज़ें हम करंट और वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और करंट जो है इनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है ये हम प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ऑसिलोस्कोप के अंदर लिमिटेशन है कि हम करंट की वेव फॉर्म उसके अंदर नहीं देख सकते। हम सिर्फ जो ऑब्ज़र्व कर सकते थे वो हमने ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर लिया है, तो हम अब फर्दर चीज़ों को देखते हैं। राइट, ये है आपके पास मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले नोट डाउन क्या करना है। नोट डाउन आपने ये करना है दैट वोल्टेज सोर्स के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी क्या सेट की हुई है, ठीक है, और उसके बाद आपने वी आर और वी एल और वी सी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं ये आर एम एस के अंदर आपने नोट करना है। यानी आपने वोल्टेज वोल्ट मीटर्स जो लगाए उनके अंदर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं। उसके बाद आपने एक फ्रीक्वेंसी रैंडम लेट सपोज 1000 हर्ट्स जो ली हुई थी, उसी के साथ आपने वी एस भी कैलकुलेट की, थीटा भी कैलकुलेट किया। थीटा आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप जो फाई है, दिस इज़ नॉट थीटा जो हमने फेज डिफरेंस अभी ऑब्जर्व किया, वो हमने वोल्टेज वेव फॉर्म्स के दरमियान ऑब्जर्व किया था। ये एक्चुअली क्या है, दिस इज़ एक्चुअली योर फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज वेव फॉर्म्स। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। और आर एक्स एल और एक्स सी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इम्पिडेंस ओवरऑल जो है ये भी आप कैलकुलेट कर लें। और उसके बाद आपने ये बेशक आप कैलकुलेट कर लें या डायरेक्ट जो आपने वैल्यूज़ इंसर्ट की हुई हैं आप वही एंटर कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट करनी है विच इज़ योर 5034 हर्ट्स। वो सेट करने के बाद आपने अगेन सेम वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है, और एंड दिस टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट आपके पास करंट के अंदर और ओवरऑल इम्पिडेंस जो है उसके अंदर भी डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस आपने नोट करना है और आपने एक लैब रिपोर्ट बनानी है जिसके अंदर आपने एंड पर कंक्लूजन लिखना है। आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट एंड देन सबमिट योर लैब रिपोर्ट टू योर टीचर। एंड आई होप दैट ये एक्सपेरिमेंट थियोरेटिकली इतना मुश्किल नहीं था और प्रैक्टिकली थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. So I'm going to end this session now. Allah Hafiz.